क्वेश्चन 1, मैच द फॉलोइंग। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 बताइए क्या है। एमसीक्यू दो पार्ट में है, पहला रिविजनरी पार्ट है, उसके बाद पास्ट ईयर के पेपर्स हैं। बताइए क्वेश्चन 1, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, करंट ईयर डिप्रिसिएशन। सेकंड बताइए 43 सबसेक्शन 1, एक्चुअल कॉस्ट। 43 सबसेक्शन 3, प्लांट एंड मशीनरी। और ये कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी। डी आंसर। मैच द फॉलोइंग, इसको हम लोग रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कर देंगे। बिल्डिंग के जनरल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे बताइए जनरल रेट क्या है। 10 है। नो हाउ पे, नो हाउ पे 25% है। मोटर कार पे 15% है। और कंप्यूटर पे 40%। DCBA, B is the answer. The person owns the asset and asset has been received in his business premises. Depreciation can be claimed. True or false? False. And तो कब मिलता है? When the asset has been received, put to use. Put to use, ये तो GST का conditions है, तो ये false है. Once the asset has been put to use, depreciation can always be claimed, even if the asset remains idle subsequently. True or false? True. Actual use होना जरूरी नहीं है. False. True. B is the answer. Interest on loan taken for purchase of asset before the asset is put to use is allowed as deduction. फिर से. Interest on loan taken, इस लाइन को हम लोग चेंज करेंगे. बेसिकली हम लोग ये कहना चाह रहे हैं इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट अक्रूज बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज. इस तरह से हम लोग उस लाइन को कुछ चेंज करेंगे. तो बताइए कि अगर इंटरेस्ट बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज है, क्या आप इसका डिडक्शन क्लेम करेंगे या इसके ऊपर कैपिटलाइज करके डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे. तो इज अलाउड एज डिडक्शन, ये फॉल्स हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ एसेट आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज इज अलाउड एज डिडक्शन. ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रू है ना. आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज, देखिए आपने लगता है ध्यान नहीं दिया. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ एसेट आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज, तो ये ट्रू है. फॉल्स. ट्रू. बी इज द आंसर. Examine the following case. ITC is part of actual cost if not claimed as credit. True or false? True. Capital subsidy is part of actual cost. False. ये तो माइनस करते हैं हम लोग. A is the answer. Asset is purchased and put to use in same financial year for less than 180 days. Half rate of depreciation is applicable. True or false? True. Where depreciation is nil, short-term capital gain shall arise. तो ये हो गया रिविजनरी वाला. अब पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो करते हैं. Under the Income Tax Act 1961, depreciation on machinery is charged on purchase price of machinery, market price of machinery, return down value of the machinery, all of the above. C. If a block of assets ceases to exist on the last day of the previous year,
admissible for the block of asset will be nil 50%. Total value of the block of asset on the first day of the previous year 50%. क्या आएगा? If a block of asset ceased to exist on the last day of the previous year, तो depreciation admissible for the block of the asset will be nil 50%. Total value पहला या A आएगा nil. जब asset ही exist नहीं करता तो जीरो हो जाता है. Adu Limited owns machinery, rate of depreciation 15%. The written down value as on 1st April is 30 lakh. Due to fire, entire assets in the block were destroyed and the insurer paid 25 lakh. The eligible depreciation in respect of the machinery is, बताइए, nil. जब entire block ही destroy हो गया तो depreciation nil हो जाएगा. क्या इसको कोई डिडक्शन मिलेगा? $5 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. Dr. Sen has surgical equipment whose WDV as on 1st April was 4,10,000. He acquired some more equipments on December for 3,50,000. He sold equipment in March for 2 lakh whose original cost was 170. The written down value of the block for the purpose of computing depreciation is, बताइए क्या करेंगे आप, जोड़ के बताइए. बी आंसर आएगा. कैसे निकाला आपने? 7,60,000 minus 2 lakh, 5,60,000. Correct. Vaibhav deriving business income owns a car whose WDV is 3 lakh. This is the only asset in the block of asset, rate 15%. It is estimated that 1/3 of the total users of the car is for personal use in both years. The WDV of block of asset would be, अरे ये तो वो वाला आ गया जो हमने छोड़ दिया अभी. चलिए इसका मैं क्या बताता हूं आपको. WDV कितना है? 3 लाख है. This is the only asset. It is estimated that 1/3 of the total users of the car is for personal purpose. तो मैं इसका 15% निकालूंगा of 3 लाख, फिर into 2 into divided by 3 कर दूंगा क्योंकि 2/3 बिजनेस पर्पस के लिए होगा. कितना आएगा आंसर? 45,000 into 2 by 3, 15 2 30,000. तो 2,70,000 आंसर आना चाहिए. इसमें ऑप्शन ही नहीं है. एक बार फिर से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए मैंने सही कैलकुलेट किया है या नहीं किया. कहां 2 years लिखा हुआ है? Whose WDV, this is the only asset. It is assumed that 1/3 of the car is for. दो साल का है क्या ये? एक बार कैलकुलेट करते हैं. 2 साल का है तो 2,70,000. इसका फिर मैं 15% निकालूंगा मैं और फिर 2/3 निकालूंगा. कितना आएगा? कितना आएगा? 270 into 15 नहीं 2,70,000 का 15% ना into 2 divided by 3 27,000 आ रहा है. ओके 27,000 ही आ रहा है. तो 270 में से 27,000 माइनस करूंगा कितना आएगा? 2,40,000. बी इज द आंसर. 2 साल का है तो इसमें मैं 2 years लिखना पड़ेगा मेरे को. मैंने ये हटा दिया इसीलिए गड़बड़ हो रही है. चलिए तो ये जो टॉपिक था इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट भी हो गया. सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 एसेट यूज पार्टली फॉर बिजनेस. अब देखिए लैंग्वेज देख लीजिए क्या है. हमने किया क्या? वेयर द एसेट इज पार्टली यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस एंड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस, then depreciation is restricted to a fair proportionate part thereof which the assessing officer may determine. अब देखिए कहानी ये समझिए, जब वो लिखता है depreciation will be restricted तो आपको WDV कम नहीं करना है.
WDV तो उतना ही रहेगा जितने रुपए में आपने खरीदा है। आपको जब भी रेस्ट्रिक्ट करना है, डेप्रिसिएशन को रेस्ट्रिक्ट करना है, जो हमने किया। 2/3 अरे आया। तो यही एक पॉइंट है। लेकिन अगर आपने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो आपका आंसर फर्स्ट ईयर के लिए तो सही आ जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए 2,43,000 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। वो जो कुछ और आएगा हो सकता है वो ऑप्शन में ये वाला, ये दोनों भी हो सकता है। तो उसको मैं चेक कर लूंगा और मैं ऑप्शन को ठीक कर लूंगा, है ना। अब आइए, अच्छा एक बार करके देख ही लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। एक बार बताइए, 3 लाख को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूं 2/3 तक, तो ये आएगा 2 लाख। यस और नो। फिर मैं अगर 15% निकालता हूं तो ये 30,000 आ जाएगा, जो यहां पर आया था। लेकिन देखिए WDV 170 आ गया। अब मैं 170 का अगर 15% निकालता हूं या कुछ और निकालता हूं तो ये देखिए WDV सब चेंज होने लगा। इसीलिए सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 कहता है कि आपको अगर रिस्ट्रिक्ट करना ही है तो डेप्रिसिएशन को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, WDV को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। बाकी आप ये कर लीजिएगा। चलिए ये भी पूछ ही लिया इन्होंने। क्वेश्चन 6, Swan Private Limited acquired machinery for 5,75,000 which included GST of 75,000 eligible for ITC. It borrowed 3 lakh from a bank for purchase of the said machine. Interest on the bank loan up to the date of usage of machine was ascertained 25,000. The machine was put to use on 15 September. Assuming the rate of depreciation ये, the eligible amount of depreciation will be. सबसे पहले बताइए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा इस मशीन का। 5 लाख, ये तो एलिजिबल फॉर ITC है, तो ये तो कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा 5 लाख। और ये इंटरेस्ट अप टू द एसेट इज पुट टू यूज, तो 5,25,000 होगा, करेक्ट। अब 5,25,000 का 15% निकालिए, कितना आता है। बी आंसर आएगा 7,875। बहुत बढ़िया। लास्ट, Ramsam Industries acquired a factory building for self-use in November. The value of land underneath the building was 5 lakh and the value of building was 10 lakh. The amount of eligible depreciation allowable will be, बताइए। 10 लाख का 10% या 15 लाख का 10%, क्योंकि बिल्डिंग है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया, वैसे बताना नहीं चाहिए था। जनरल रेट 10% है। बताइए क्या आंसर आएगा। अरे बोल दीजिए, सी आएगा। ठीक है, सिर्फ बिल्डिंग का मिलेगा। तो वी कंप्लीटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं